और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना भर में आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज रियासती हाई कोर्ट ने स्कूलों को खोलने की मशरूत इजाज़त दी थी, जिसके बाद कोविड के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए स्कूलों को खोला गया है। ताहम अकामती स्कूल्स और हॉस्टल्स को खोलने पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। कई स्कूलों में असातिज़ा ने तलबा का इस्तक़बाल किया। महकमा तालीम ने बताया कि पहले दिन 40% तलबा हाजिर हुए। स्कूलों में फिजिकल क्लासेस के आगाज़ पर तलबा और सरपरस्त ने मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। Actually, it's okay, but according to health, it's not correct, right? Like, we can study afterwards too. I just prefer online for now, but if both are there, we will prefer offline. I have no problem with it. Today, I'll see how it functions, and we'll decide how it will be. I mean, I actually feel happy that because offline schools, they give you more, I can understand more in the schools, but then online schools are not really that much understandable. So I feel happy about it, and I do feel safe because everyone is wearing masks and they're sanitizing everyone, and everyone is vaccinated, so they informed us about it already, so I do feel safe about it. Because they are saying that they will sanitize the whole school before we come, so I think we will be safe here. I am excited. Let's see how the school goes. It is better for the students, kids for coming to school because of physical activity. There is no physical activities going on online classes, and there is no proper education going on online classes. So physical, it will be better to get better physical classes is better. Safe, we can't say safe, but the government is allowing, right? Yeah. The government is allowing so because we will see there is no cases now. So we expect it will be safe, but we cannot sit at home and we can say that it will be not safe and sitting at the home is not correct. We've been waiting, but yeah, we've checked the precautionary measures taken by the school. I think we are pretty satisfied as of now. We'll see for some time and then take it So, is it safe for the students right now? Right now, with the precautions they are taking, yes. We are sanitizing the rooms daily, and yesterday also we have done with the sanitization of corridors, classrooms, and we are leaving one classroom and we are taking other classrooms, alternate one, and one floor we are taking only 2 classes per floor, and per bench, one school bench will be adjusting only 1 or 2 students to maintain the social distance. Per classroom we are planning to take 20 students. We are conducting for high school, so depending upon that we will see. As the state yesterday the government has given the decision, the management can take their own decision for conducting online and offline classes. So first we are seeing with the high school. आगे बढ़ते तेलंगाना की वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने हैदराबाद के इलाका विजयनगर कॉलोनी में सरकारी स्कूल का दौरा किया। उन्होंने स्कूल में दर्स व तदरीस कोविड कवायद की अमल आवरी का जायजा लिया, तलबा से बात की। उन्होंने कहा कि अब पहले से ज्यादा एहतियात और चौकसी की जरूरत है। स्कूलों में सुबह में कोविड के उसूलों पर अमल के सिलसिले में तलबा को मशवरे दिए जाएं। दोपहर के खाने के मौके पर समाजी फासला बरकरार रखा जाए। तमाम DEOs और सुदूर मदारिस को इस सिलसिले में तालमेल पैदा करने की जरूरत है। रियासत में पहली से 10वीं जमात तक के तलबा की तादाद 60 लाख है। इनमें 29 लाख तलबा सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। जिस भरोसे से वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूलों को भेजा है, इस भरोसे पर पूरा उतरने की जरूरत है। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने राजभवन स्कूल का दौरा किया। कोरोना के तीसरे इम्कानी लहर के दौरान स्कूल में दर्स व तदरीस के साथ साथ कोविड कवायद की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने तलबा से बात करते हुए उनको मशवरे भी दिए। डायरेक्टर महकमा सेहत आमा तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा है कि तेलंगाना में इब्तदा से ही कोविड प्रोटोकॉल के इक़दाम सख्ती से किए जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोविड से अमवात की शरह सिर्फ 0.5% है। अब तक रियासत में 1 साल से 10 साल से कम उम्र के सिर्फ 3% बच्चे ही कोविड से मुतासर हुए हैं। स्कूल्स ओपन करने के लिए, प्राइमरी से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स तक पूरा ओपन करने के लिए डिसीजन लिए।
एडिशन तेलंगाना का कोविड सिचुएशन देख के तेलंगाना में अभी कोविड सिचुएशन पूरा कंट्रोल में है। हमारा पॉजिटिव रेट लेस देन 5% है। एक्टिव केसेस भी पूरा 5,000 से ज़्यादा नहीं है। और अभी लॉकडाउन भी ओपन करके ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हो गए जब से अभी तक कुछ भी आउटब्रेक्स नहीं हुआ। एंड स्पेशली चिल्ड्रन में लास्ट 2.5 ईयर से हमारा अप टू 1 साल से 20 साल तक पॉजिटिविटी रेट इज़ 13% ओनली। खाली 13% चिल्ड्रन को पॉजिटिव आ गए एंड नो चिल्ड्रन हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड और no children has become serious or severe and no deaths we have seen in the। और अब कुछ सियासी खबरें। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बेगमपेट एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो गए। केसीआर का दिल्ली में 3 रोज़ा दौरा है। 2 सितंबर को केसीआर तेलंगाना राष्ट्र समिति के कौमी दफ्तर का दिल्ली में संग बुनियाद रखेंगे और 3 सितंबर को हैदराबाद वापस होंगे। चंद्रशेखर राव के 3 रोज़ा दौरे दिल्ली के साथ ही फेडरल फ्रंट की क़यास आराइयां शुरू हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि सीएम केसीआर दिल्ली में हम ख्याल पार्टियों के लीडरों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में पार्टी दफ्तर का क़याम टीआरएस के कौमी सियासत की जानिब एक कदम समझा जा रहा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव और तेलंगाना के वज़रा अराकीन पार्लियामेंट और असेंबली दिल्ली पहुंच गए हैं। केटीआर ने वज़रा और पार्टी लीडरों के साथ पार्टी दफ्तर के संग बुनियाद की तैयारियों का जायजा लिया। इससे पहले पार्टी लीडरों ने तारक रामाराव का एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। तेलंगाना हुकूमत ने हुजूराबाद से शुरू की गई दलित बंधु स्कीम में तोसी करने का मंसूबा बनाया है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने दलित बंधु स्कीम को एससी रिजर्व असेंबली हलकों के 4 मंडल्स तक तोसी करने का फैसला किया है। 4 मंडलों में चिंतागंडी मंडल, तिरुमलगिरी मंडल, चारगुंडा मंडल और निजाम सागर मंडल में भी दलित बंधु स्कीम शुरू की जाएगी। सीएम दिल्ली से वापस होने के बाद इन मंडलों में स्कीम पर अमलावरी का ऐलान होगा। वाज़ेह कि तेलंगाना हुकूमत ने दलित बंधु स्कीम के तहत दलित खानदान को माशी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। मुल्क में अपनी नौयत की ये पहली स्कीम है। सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी फिरका परस्ती का जहर फैला रही है। फिरका परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद के लिए तहरीक मुस्लिम शब्बान व दीगर मिली समाजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम 8 सितंबर को चारमीनार से इत्तेहाद रैली निकाली जाएगी। भाग्य लक्ष्मी मंदिर जो है, बहरहाल मंदिर है, चलिए बरसों से है, लेकिन वो मंदिर का स्टेटस जो है वो स्टेटस इलीगल स्टेटस है। और बीजेपी की म्युनिसिपल इलेक्शन से ये कोशिश है कि उस मंदिर को एक मरकज़ी मकाम में तब्दील किया जाए। चुनाचे हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर भी वहाँ पर आकर पूजा करते हैं। यात्रा भी जो शुरू की गई है वहाँ से ही समझिए शुरू की गई है। तो हमको समझिए कि रियासत हैदराबाद की तहजीब व तमद्दुन को ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है उस पर एतराज़ है। और फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नारे बुलंद किए गए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रतंगेज़ बातें की गई हैं, उसके समझिए कि काउंटर के लिए हम एक समझिए गंगा जमुना तहजीब को परवान चढ़ाने और तेलंगाना के सेकुलर क्रेडेंशियल को और तेलंगाना के सेकुलर स्टेटस को बाकी रखने के लिए ये सितंबर को 2 बजे चांदनार से रैली निकलेगी और 1 घंटे का प्रोग्राम चांदनार के पास रहेगा। 1 घंटा वॉक के लिए ले रहे हैं और खुली कुतुब शाह पर पहुंचकर ये रैली डिस्बर्स होगी। समाजी मजहबी तंजीमों को भी हम दावत दे रहे हैं और दलित ऑर्गेनाइजेशंस भी समझिए कि इसमें रहेंगी, सिख ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी और हिंदू मनादिर के पुजारी रहेंगे, चर्च के बिशप रहेंगे, मुसलमान उलमा रहेंगे, मुफ्तियान रहेंगे। इस तरह से समझिए कि कॉम्बिनेशन के तहत हम ये रैली मुनज़्ज़म कर रहे हैं। एक अजीम कॉज है, ये एक अच्छा कॉज है और अगर इस कॉज पर हमारे रियासत के हमारे सिटी के कमिश्नर ऑफ पुलिस अगर परमिशन नहीं देते हैं तो इससे ज़्यादा बदबख्ती की बात कुछ और नहीं होगी। रिश्तों को इखलास, प्यार, मोहब्बत, इसार कुर्बानियों से निभाने के मामले में हैदराबादी सारे मुल्क में सरफहरिस्त हैं। माई गेस्ट ट्रस्ट सर्किल की जानिब से की गई तहकीक में ये बात सामने आई है।
कोरोना बहरान के दौरान भी हैदराबादी आवाम अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद करने के लिए पेश रहे हैं और कोरोना मुतासिरीन की भरपूर मदद करते हुए इंसानी हमदर्दी की मिसाल पेश की है। हैदराबाद के 100% आवाम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जहनी तनाव और इज़्तिराब की कैफियत को सिर्फ रूहानी रिश्ते के जरिए ही दूर किया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान हैदराबादी आवाम अपने वॉचमैन, डिलीवरीज बॉयज और घर के कामकाज करने वाले गरीब आवाम से इंतहाई मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आते रहे। इनकी हर तरह से मदद की। यही नहीं, पड़ोसियों का भी ख्याल रखा। माई गेस्ट ट्रस्ट के CEO माविन बानी अभिषेक कुमार ने बताया है कि मुसीबत के वक्त मदद करने के मामले में जनूबी हिंद में हैदराबाद के अवाम सरे फहरिस्त हैं। तेलंगाना BC कमीशन के सदर और अरकान ने जिम्मेदारी संभाल ली है। हैदराबाद के इलाका खैरताबाद में वाक़ा BC कमीशन के दफ्तर में कमीशन के सदर नशीन डॉक्टर V कृष्ण मोहन राव, अरकान ईश्वर गौड़, संपत शोभा प्रधान पाटिल ने अपने अरकान खानदान की मौजूदगी में ये जिम्मेदारी संभाली। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने BC कमीशन के सदर नशीन को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में वज़ीर बहबूदी पसमानदा तबक़ात गंगूला कमलाकर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी B वेंकटेश, रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर निशी विनोद कुमार समेत दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद के हुसैन सागर में गणेश मूर्ति के विसर्जन के मामले की समाअत आज तेलंगाना हाई कोर्ट ने की। वेणु माधव नामी वकील ने गणेश चतुर्थी के मौके पर मूर्तियों के विसर्जन को हुसैन सागर में करने पर पाबंदी आयद करने की अपील की है। हाईकोर्ट की बेंच ने मूर्तियों के हुसैन सागर में विसर्जन पर पाबंदी, इनको रोकने के इक़दामात से वाकिफ करवाने की हुकूमत को हिदायत दी है। साथ ही अदालत ने हुकूमत, गणेश उत्सव समिति और अर्जी गुजार को हिदायत दी है कि वो रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने रिमार्क किया है कि कोविड की सूरत हाल हुसैन सागर में आलूदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। अदालत ने राय दी कि मुमकिन हो सके तो मकामी सतह पर मूर्तियों का विसर्जन किया जाए। इज्तिमाई तौर पर हुसैन सागर में मूर्तियों के विसर्जन के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाए कि हुसैन सागर को नुकसान न होने पाए। इस मामले पर तमाम की राय पर गौर किया जाएगा। मामले पर अगली समाअत 6 सितंबर को होगी। रचकोंडा पुलिस कमिश्नर M महेश भागवत ने सरूर नगर तालाब का दौरा किया। उन्होंने पुलिस और काम के साथ गणेश त्यौहार के मौके पर गणेश विसर्जन की तैयारियों का जायजा लिया। वाज़ेह है कि तेलंगाना में 10 रोजा गणेश त्यौहार का आगाज होने वाला है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर तकरीबन 200 अफराद को जेल भेज दिया है। साइबराबाद पुलिस ने 198 अफराद को हालत नशा में गाड़ी चलाने और बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने के इल्जामात के तहत हिरासत में लिया था। पुलिस ने इन्हें अदालत की जानिब से 1 दिन से 20 दिनों की मुद्दत के लिए जेल भेज दिया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 23 ta 27 अगस्त के दौरान साइबराबाद कमिश्नरेट के मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 198 अफराद को हिरासत में लिया गया था। इन अफराद को अदालत में पेश किया गया। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर इन्हें जुर्माना किया गया। हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों को जुमला 18.10 लाख रुपए और बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों को जुमला 13 लाख रुपए जुर्माना किया गया। तेलंगाना वारंगल में छोटे भाई ने बड़े भाई भाभी का कत्ल कर दिया। इस हमले में 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। वारंगल ACP के गिरी कुमार ने बताया है कि मोहम्मद चांद पाशा अपने खानदान के साथ LB नगर वारंगल में रहते हैं। वो अपने छोटे भाई शफी के साथ मवेशियों का कारोबार करते थे। 1 साल से उन दोनों भाइयों के दरमियान 1 करोड़ रुपए के लेन देन के मसले पर तनाज़ा चल रहा था। शफी इस मामले पर बड़े भाई से नाराज था। शफी सुबह की अवलिन सातों में अपने साथियों के साथ चांद पाशा के घर पर हमला कर देता है। चांद पाशा के घर का दरवाजा कट्टर की मदद से तोड़ दिया और अंदर दाखिल हुआ और चांद पाशा, उनकी अहलिया साबरा बेगम, चांद पाशा के बेटों शाहिद, समीर और बिरादर निस्बती खलील पर तेज हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें चांद पाशा, साबरा बेगम और खलील मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि इनके 2 बेटे शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। గిరి కుమార్ కల్కోట అసిస్టెంట్ కమిషనర్ పోలీస్ వరంగల్ డివిజన్. ఈరోజు మనం ఎల్బీ నగర్లో చాంద్ పాషా ఇంటి దగ్గర ఉన్నాము. అబౌట్ 3:30 నుంచి 4 o'clock మధ్యన
చాంద్ పాషా వాళ్ళ బావమర్ది వాళ్ళ వైఫ్ ముగ్గురు కూడా హత్య గావించబడ్డారు మనకు సమాచారం వచ్చేసి నైట్ రౌండ్ ఆఫీసర్ మన గణేష్ ఇన్స్పెక్టర్ మట్వర గారు అండ్ ఇంతజార్గంజ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు చెప్పడం వల్ల నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను. చూసాం ఇంట్లో హాల్లో 3 డెడ్ బాడీస్ ఉన్నాయి. చాంద్ పాషా అతని భార్య మరియు వాళ్ళ బావమర్ది కూడా 2 పర్సన్స్ ఇంజూర్డ్ అయిపోయి ఎంజీఎం హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. మనం విచారణ చేస్తే చాంద్ పాషా మరియు వాళ్ళ తమ్ముడు షెఫీల మధ్యన ఈ క్యాటిల్ బిజినెస్ పశువుల యొక్క వ్యాపార లావాదేవీల్లో సుమారు ₹1 కోటి మధ్యన ఏదో గొడవలు జరుగుతుందని చెప్పేసి సమాచారం ఉన్నారు. ఈ డోర్ ఉంటుంది కదా మెయిన్ डोर वाला. और फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश से.